السلام علیکم. جتنے بھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب اور ان کا عملہ اور جو ہمارے یہاں اس وقت آفیسر صاحبان ہیں محکمہ تعلیم سے وابستہ اور والدین حضرات، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سماج اور اسکول کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ میں نے ایک بار جب میں پرائمری اسکول میں تھا تو اسکول کی دیوار پہ ایک بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ اسکول اور سماج کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آج مجھے وہ بات ٹھیک سے سمجھ آ رہی ہے. دراصل یہ دو ہاتھ سے جیسے تعلیم بچتی ہے، ایسے ہی بچے کی تعلیم تب جا کر افیکٹو ہو سکتی ہے، مؤثر ہو سکتی ہے اور ٹھیک ہو سکتی ہے جب اساتذہ اور والدین کا آپس میں تال میل ہو. ابھی جو پچھلے سال بھی اسی اسکول میں اسی ہال میں یہی پی ٹی ایم کا پروگرام ہوا تھا تو کچھ سجھاؤ دیے گئے تھے پیرنٹس کی طرف سے. تو میں اس کے بعد وہ مانیٹر کرتا رہا. مجھے لگتا ہے کہ اس ادارے میں ان تجاویز پہ بہت حد تک، کافی حد تک اور تسلی بخش حد تک ان پر عمل ہو رہا ہے، ان کو اپنایا جا رہا ہے. آج بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں والدین سے بھی کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں اگر ان کو کوئی کمی نظر آتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرے. میں ابھی پرنسپل صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے وہ والدین زیادہ قابل قدر ہیں، وہ سول سوسائٹی کے ممبر زیادہ قابل قدر ہیں جو کسی طرح سے ادارے کی کمزوریوں کو ظاہر کریں، کیونکہ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا. تو اس طرح سے میں چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی ایم ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والد ہوں ایک بچی کا، مجھے میں بہت شکر گزار ہوں. کل مجھے لیٹ نائٹ میں نے اپنے اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایک میسیج ملی ہے کائنڈلی اٹینڈ دی رجسٹریشن فار یور پی ایم پیرنٹ ٹیچر ڈگری. تو میں بہت خوش ہوا. تو میری خوشی رہتی ہے کہ ہمارا دھیان زیادہ ہمارے بچوں پر رہتا ہے کہ ہمارے بچے کیسے ان کی تربیت ہو. تو میری کوشش رہتی ہے ہر وقت کہ اپنے بچے کی تربیت گھر میں کروں. لیکن یہاں پر ایک میں خامی نہیں کہوں گا، یہ ہماری خامی ہے. ایوریج اسٹوڈنٹ جو یہاں آ رہے ہیں، ایوریج اسٹوڈنٹس پڑھنے میں جن کی بہت جو پیچھے کر رہے ہیں ہر سبجیکٹ میں، یعنی لکھنے پڑھنے میں آپ کی طرف سے گارنٹی دوں گا کہ ایک بچی ہے یا بچہ ہے وہ گھر میں پڑھتا بھی ہے، وہ کاپی بھی بنا رہا ہے، ہر چیز. لیکن ایگزام جب اس کا پہنچتا ہے تو وہ اس میں ناکام ہوتا ہے. تو ایسے بھی بچہ ایک لسٹ کی مرتب ہوا تھا پچھلے سال یہاں، تو اس پر ٹیچر جو ہے ان کی بہت کوشش رہتی ہے. یہاں کا اسٹاف پرنسپل وہ بہت خوش ہوتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹ سے جو پڑھنے میں اچھے ہو. اور جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں جو پیچھے رہتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں ابھی تک کوئی لائی عمل نہیں، ہمارے پاس کوئی لائی عمل نہیں پہنچا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو اسٹاف ممبرس ہیں یہاں کے جو ٹیچرز ہیں تو ان کا کیا لائی عمل ہے اس پر. تو باقی ہماری طرف سے ہم خوش ہیں. ان کی میں یہ کہوں گا کہ ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے. تو یہ ایسے جو انسٹیٹیوشنز یہاں پر کام کر رہے ہیں جیسے ٹیوشن سینٹرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اچھے اسٹوڈنٹس کون سی کریم ہے سوسائٹی میں کون پڑھنے والے ان کو لے کے ایک لسٹ مرتب کر رہے ہیں. تو ان کی لسٹ بنا رہے ہیں تو انسٹیٹیوٹ کا نام اوپر ان کا انسٹیٹیوٹ کا نام بہت یعنی کہ آگے لے جاتے ہیں ان کی طرف. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایسے اسٹوڈنٹ پر نظر رکھنی چاہیے جو ایوریج میں پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو ان کے لیے مجھے سجیشن چاہیے. میں اس کی مخالفت کرنے نہیں آئی ہوں. میں بہت مشکور ہوں آپ سے بھی. یہ اسٹاف یہاں پر اچھے اسٹاف ہے، میرے دوست بھی ہیں. تو میری بچی ہے. میں ایسے کہوں گا کہ
चीज वो ऑनर कर रही है घर में हर चीज की, यानी कि सफाई में, उठने में, कुरान पढ़ने में, हर चीज में, लेकिन पढ़ने में, लिखने में, लेकिन जब एग्जाम पहुंचता है एग्जाम में वो उसके जो नंबर्स हैं बहुत कम होते हैं। तो 9th में 1 साल हुआ यहाँ मुझे, तो टीचर्स ने बुलाए तो मुझे, तो क्या करिए उसका अल्लाह के क्या है, तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो मैं मशहूर साहब यहाँ पर हमारे एजुकेटिस्ट है डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने 2 बार ये ट्राई किया है, अपने बच्चे को उसके पास दे गया हूँ, उसके पास मशवरा करूँ तो वो क्या मुझे सजेशन देगी। ये बहुत खुश हुआ है, आप इस पर तवज्जो देंगे और हमें इन्फॉर्म करोगे, क्योंकि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो बच्ची या बच्चा किसी और जिंदगी में, किसी और फील्ड में होंगे, उनकी लाइफ चेंज हुई होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा एक बच्चा है वो डॉक्टर है, मेरा डॉक्टर सेकंड ईयर एमबीबीएस जम्मू, तो मेरी एक और बच्ची है वो भी ग्रेजुएशन कर रही है, कि ये बच्ची जो यहाँ पढ़ रही है थोड़ा इसको मुझे सजेस्ट कर दीजिए हाउ कैन शी गेट थ्रू। तो बाकी मैं उसके बारे में वो अच्छी है, अच्छी पढ़ रही है, अच्छी काउंट कर रही है, तो सिर्फ आपकी स्टाफ की इसको थोड़ा सजेस्ट करोगे अच्छी तरह से, तो वो मुझे कैसे इसमें निकालिए, मैं मुझे जो परेशान। क्लास में सारे बच्चे जो है वो एक ही लेवल के नहीं होते, और एक उस्ताद जो है वो एक बेहतरीन जज होता है, वो ये जान सकता है कि कौन सा बच्चा जो है उसकी लर्निंग लेवल क्या है। तो जैसे आपने कहा कि तवज्जो मिलनी चाहिए वैसे बच्चों को जिनकी लेवल थोड़ी कम हो, उनको भी तवज्जो मिलनी चाहिए। सीओ साहब मौजूद है, सीओ साहब अपने इस हमले को डायरेक्शन देंगे कि ऐसे बच्चों के लिए अगर जरूरत पड़े तो रेमेडियल क्लासेस भी दी जाए, ताकि उनका जो बयान है वो भी बेहतर हो। रही बात मार्कसिस की, तो मार्कसिस जो है ये कोई सोल क्राइम। First of all, it's an honor for me to connect with you, sir. मैं एज अ पेरेंट आज आया हूँ, मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं, 9th से वो पढ़ रहे हैं, इस साल उनका 10th है। मैं भी 2 साल यहाँ पर रह चुका हूँ, 9th और 10th मैंने भी यहाँ किया है सर। यहाँ की फैकल्टी की बात करी जाए, बहुत ही काबिल है यहाँ की फैकल्टी, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे कुछ कंसर्न्स है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर गौर व फिक्र करेंगे। पहली बात यह है कि डे बाई डे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे हम सभी को पता है, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है सिर्फ नीट और जेईई में। अब मैं आप सबसे गुजारिश करना, पेरेंट्स सारे यहाँ पर वो स्टूडेंट्स को जज करते हैं अपने मार्क्स से कि उनने कितना स्कोर किया, उनको लगता है कि स्टूडेंट्स बस वो स्कोर पे उनको जज करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि हर एक बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में ये देखा है कि वो बच्चे को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं कि वो बच्चा उसने नीट किया कि आपको भी नीट में जाना है, उसने जेईई किया आपको भी जेईई में जाना है, लेकिन वो उनसे नहीं पूछते हैं कि आपको करना क्या है। जैसे कि हम सभी को पता है कि एआई का ज़माना है, कि हमारी जो जनरेशन है ये जेनजी जनरेशन में कहा जाता है, तो हमारी जो जनरेशन है ये ज़्यादा एआई पे फोकस है आजकल। एआई बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है इसमें, अब प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा काम आया सर। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो टाइम है 9, 10, 11, 12, ये 4 साल एक बच्चे को बनाने के लिए भी होते हैं, उनको बिगाड़ने के लिए भी होते हैं। हमारे बच्चों का मोस्ट ऑफ द टाइम इसी स्कूल में आता है, क्योंकि उनको 10 बजे से 4 बजे तक उनका टाइमिंग नहीं होता है, होते 24 आवर्स उनके पास, 10-12 घंटे वो नींद ही करते हैं, उसमें खेलने नहीं जाते हैं। सो 8 आवर उनके नहीं होते। अब वो 8 आवर उनकी जिंदगी बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। थ्योरीज की बात करी जाए, थ्योरीज लाखों बुक्स में थ्योरीज पढ़ाई जा सकती है, वो बच्चा खुद भी पढ़ सकता है, कोई बुक लाइब्रेरी यहाँ पर वहाँ पर जाके पढ़ सकता है, ऐसे खुद भी पढ़ सकता है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उनका प्रैक्टिकल किया जाए, ताकि उनको पता चले कि और मेरी यहाँ पर गुजारिश है, जैसे कि आप सभी को नहीं पता है क्योंकि मैं यहाँ पर रहा हूँ, हमारे पास 2 और सब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉर्मल 5 सब्जेक्ट्स, उसके बगैर भी 2 और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है आईटी और दूसरा होता है वोकेशनल सब्जेक्ट। मैं वोकेशनल सब्जेक्ट का स्टूडेंट रहा और मैंने आईटी में भी थोड़ा सा काम किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आधे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको यहाँ पर दिया जाता है, वो क्या बोलते हैं स्किल बेस्ड, मतलब कोई वोकेशनल में जाता है, कोई आईटी में जाता है, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि हम किसी में ना जाए। मैं चाहता हूँ कि उनको वोकेशनल और आईटी दोनों की नॉलेज हो, क्योंकि सर मैंने देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ये बहुत ही
मतलब आगे बहुत ही काम आता है ये सब चीज़ें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप स्किल बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर भी लाए, क्योंकि आप ये सिखाए कि एक स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट रहना कैसे सीखना है, वो अगर एक बच्चे ने सीखा तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर हाथ सकता है। थैंक यू सर, ये मेरी गुजारिश। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सीओ साहब और प्रिंसिपल साहब वहाँ पे मौजूद हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए, तो मुझे उम्मीद है आप इनके इस कंसर्न को नोट करेंगे तो उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सीओ साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ पेरेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रेड साहब भी हैं, इस वक्त फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। जहाँ तक इन पेरेंट्स की जो क्वेरीज हैं उनके ऊपर मेरे ख्याल में हर इंस्टीट्यूशन में काम हो रहा है, रेमेडियल क्लास हो रहे हैं। और जो ये बच्चा भी बोल रहा था वोकेशनल के लिए, तो वो भी वोकेशनल भी सब्जेक्ट्स भी हो रहे हैं, लेकिन स्किल के लिए हम देखेंगे कि कहाँ से हमें आपके वसात से हमें ये डायरेक्शन मिल जाएगी कि कहाँ से इनको स्किल बेस पे हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये जो हाई सेकेंडरी हमारे हैं यहाँ पर बॉयज हाई सेकेंडरी कोपारा, ये सेंट्रली लोकेटेड है सर। इसमें रोल ज्यादा होता है, 1200 के करीब यहाँ पे बच्चे हैं। और टीचर्स के कितने हैं यहाँ पर? टीचर्स भी। और हम कोशिश करेंगे कि हर एक टीचर्स यहाँ पे आए ताकि ये हर दिन जो है इसके ये एक सैंपल के तौर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी। थैंक यू सर। मीटिंग को कंटिन्यू रखिए, उसके बाद भी कुछ पेरेंट्स शायद आपको बात करना चाहें, आप उसको कंटिन्यू रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हमें इंस्पेक्शन करना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर।